ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕੀ। ਏਕ ਅਨੇਕ ਵਿਆਪਕ ਪੂਰਕ, ਜਤ ਦੇਖੋਂ ਤਤ ਸੋਈ। ਮਾਇਆ ਚਿੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਵਿਮੋਹਿਤ, ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੂਤ ਏਕ ਮਣ ਸ਼ਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ। ਓਤ ਪੋਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ ਰਹਾਉ। ਜਲ ਤਰੰਗ ਅਰ ਫੇਨ ਬੁਧ ਬੁਧਾ, ਜਲ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨ ਹੋਈ। ਇਹ ਪਰਪੰਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਲੀਲਾ, ਵਿਚਰਤ ਆਨ ਨ ਹੋਇ। ਮਿਥਿਆ ਭਰਮ ਅਰ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ, ਸਤ ਪਦਾਰਥ ਜਾਣਿਆ। ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਮਨਸਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੀ, ਜਾਗਤ ਹੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਹਰ ਕੀ ਰਚਨਾ, ਦੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ, ਕੇਵਲ ਏਕ ਮੁਰਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦਿਆਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੀ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਕ ਨੰਬਰ 485 ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 5 ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 18 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 61 ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖੇਪ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ, ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜੀ ਕੀ। ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਬੰਧ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸੂਤ ਏਕ ਮਨ ਸ਼ਤ ਸਹੰਸ ਜੈਸੇ, ਓਤ ਓਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਜਦੋਂ ਗੋਪਾਲ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਗੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਧੀ ਛੇਦ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜੀਓ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਆਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਚ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵਿਦਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ। ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਥਾਈਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਰੂਪ ਹਨ, ਰੰਗ ਹਨ, ਆਕਾਰ ਹਨ, ਬਣਾਵਟਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਾਖਿਆਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਹਲੇ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਬਾਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ, ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਸੁਹਜ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਹਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਸਹਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ, ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਨ ਏਕ ਪਦ, ਗੰਧ ਬੇਨ ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਵਟਾਂ, ਆਕਾਰ, ਮੂਰਤਾਂ, ਸ਼ਕਲਾਂ, ਸੂਰਤਾਂ, ਰੰਗ ਸਭ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ, ਸ਼ਕਲ, ਸੂਰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਰੰਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰਿਹੂ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ना उहदा रूप है, ना रंग है, ना आकार है। हुण सतगुरु जी जिस वेले उसनूं बयान करते हैं तो जोत रूप हार आप कहिंदे ने। सब मैं जोत जोत है सोए, तिसदा चानण सब मैं चानण होए। उस दा जिहड़ा स्वरूप गुरबाणी दे विच बयान कीता है। वैसे तो सारी खलकत नूं ही उहदा रूप कहा, सारे संसार नूं ही उसका रूप आख्या। ये विश संसार तुम देखदे ये हर का रूप है। पर जिहड़ा स्वरूप गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच उसका बयान किया वो गुणवाचक है। भाव उसनूं उहदे गुणां दे राहीं, उस दियां सिफतां दे राहीं, उस दियां खूबियां दे राहीं चितरिया गया। जिहड़ी चीज़ ने मनुख के जीवन का भला करना है। तो सतगुरु महाराज का यह पावन उपदेश जिथे भगत नामदेव साहब जी बख्शिश कर रहे हैं, सब गोबिंद है, सब भाव हर थां दे उत्ते सिरजनहार आप है। फिर दोहराउंदे ने सब गोबिंद है, हर जगह ते हे पाई सिरजनहार परमेश्वर आप है। फिर आख्या गोबिंद बिन नहीं कोई, उस तो बिना तो कोई है ही नहीं। ओही है हर जगह ते, वो आप ही आप पसरिया होया है। सारा कुछ उसे का ही रूप है, हर जगह ते उसे दी चेतन सत्ता जिहड़ी है वो क्रियाशील है। फिर इसकी व्याख्या की, इनू एक्सप्लेन किया उदाहरण दे के। कहने लगे सूत एक, सूत कहते ने धागे नूं। एक धागा है, मण मणकिया नूं कहते हैं। जिवें लंबी माला होवे ना, तुसी जिन्ने मोती परोना चाहो एक धागे दे विच तुसी उन्ने मणके उन्ने मोती परो सकते। तो शब्द वरत्या माण छत सहंस। वैसे ये सस्सा ते तत्ता शब्द है, इनू आम तौर पर असीं सत बोलते हैं, क्योंकि इत्थे कोई सस्से दे पैर च बिंदी अंकित नहीं है, दर्ज नहीं। पर इस संस्कृत का शब्द है। छत का मतलब होता है हज़ारां, सैकड़े सैकड़े। भाई गुरदास जी ने अपने कवित की पंक्ति दे विच एक शब्द वरत्या है, जैसे छत मंदिर कंचन क्यों सारदी ने। असी कई बार उसकी व्याख्या करते कहने भी जिवें 7 मंदिर सोने दे बना के कोई दान करता है। भाई गुरदास जी ने उत्थे 7 शब्द संस्कृत का वरत्या छत। इहदा भाव है जिवें कोई सैकड़े सोने के मंदिर बना के दान करता, सैकड़े भाव अनगिणत। इत्थे की भाव है, सूत एक, एक धागा है, मण छत सहंस जैसे। सैकड़े सहंस हज़ार नूं कहंदे ने। सैकड़े हज़ारां मोती एक धागे विच मणके परोए जांदे ने। धागा इको ही है, सैकड़े मणकियां दे विच हज़ारां मोतियां दे विच वो इको धागा ही लगातार जिहड़ा है वो परोया होया है। आखदे ने ओत पोत प्रभ सोई। जगत दे वखरे वखरे आकार रूप पदार्थ हन, जीव हन, जंतु हन, वस्तुआं हन। उन्हां दा रूप वखरा है, रंग वखरा है, आकार वखरा है, ते फिर अनेक ही ने, अनगिणती ने, गिणती तो बाहरियां। उन्हां सबना दे विच इको परमेश्वर ही आप ओत पोत ताणे पेटे वांग आप ही समाया होया। जिवें सैकड़े हज़ारां मोतियां दी माला दे विच धागा इको ही है, इस तरह सर्व प्रकार के जीवां दे विच, सारी खलकत दीयां चीज़ां दे विच, वखरे वखरे संसार के आकारां दे विच इन्हां नूं सिरजण वाली, इन्हां नूं चलाउण वाली, इन्हां नूं लै नाश करन वाली इको ही सत्ता है। वो है परमेश्वरी सत्ता, वो है अकाल पुरख वाहिगुरू। तो आरंभ के वाक विच क्या, एक अनेक व्यापक पूरक। एक परमेश्वर अनेक तरह के नाल व्यापक है। 2 शब्द वरते ने, एक वरत्या है व्यापक, दूजा है पूरक। व्यापक का मतलब होंदा है व्यापक, इत्थे भी है, उत्थे भी है, तीजी चौथी हर थां ते जिहड़ा हो। ते पूरक का मतलब होंदा है जिहड़ा भरपूर होवे। ये नहीं भी इत्थे थोड़ा है तो उत्थे ज़्यादा है, जां तीजी जगह ते उन्होंने किसी होर ग्राफ च लिया जाए, जां चौथी जगह ते उहदी मिणती घट जाए। शब्दां दी चोण किड्डी प्यारी। एक
अनेकता दे विच व्यापक है। एक ही एक अनेक होए बिस्तरियो, आन रे आन भरपूर सो। एक ही अनेक रूप विच हो के व्यापक है, एक ही अनेक रूप विच हो के व्यापक है। फिर आखदे ने आन रे आन भरपूर सो। इत्थे शब्द वरते व्यापक, फिर अगे वरते पूरक, भी वो सबनी थाई इको जिहा मुकम्मल है। वो धर्मी विच ज्यादा नहीं तो पापी विच घट नहीं है, वो पूरक। पर मनुख अपनी पाप ग्रस्त मलीन सोच करके उन्होंने सिंझाणदा ते समझदा नहीं, उन्होंने जानदा नहीं, उन्होंने अपने अंदरों खोजदा नहीं। इस करके उन्होंने लगता है रब मेरे कोलों दूर है। नहीं, वो मनुख अपनी अज्ञानता के पड़दे कारण परमेश्वर नूं भुलिया होया है, तो उहदे अंदर भी। जदों कोई ऐसा मंद कर्मी, जदों कोई ऐसा भुलिया होया उस दे राह दे उत्ते चलदा है, उन्होंने समझ पैंदी है, तो उन्होंने कितों बाहरों थोड़ी मिलता है। उन्होंने अपने वजूद विचों ही वो प्राप्त होता, उन्होंने अपने वजूद विचों ही वो लभदा है। तो गुरु साहब ने किते नहीं कहा भी कोई बंदा रब तो खाली है, कोई बंदा रब तो वखरा है। हुण वेखो ना, ये व्याख्यावां दे वखरे वखरे पद्धर हैं। गुरु साहब जी ने जिहड़ा मनुख दा बाणी दे विच वर्णन कीता वो कर्म आधारित कीता, जन्म आधारित नहीं कीता। जां ये किते नहीं कहा भी जिहड़ा बंदा मेरी गल नहीं सुनदा वो अधर्मी रहेगा। सतगुरु दा सर्ब थाई उपदेश देण दा भाव यह है, उन्होंने अपने उपदेश विच जिहड़ी जिन्हों कहने ना भी कोई दर्जा नहीं मिथ्या, बल्कि दर्जा कर्म आधारित जरूर मिथ्या। खसम विसारें ते कमजात। उन्हें जे साकत कहे तो उसकी व्याख्या की है भी साकत तो मेरा भाव किसी श्रेणी तो नहीं है, कर्म तो है। जे मनमुख लिखा तो मनमुख की एक्सप्लेनेशन देंदे उन्होंने कहा भी मनमुख तो भाव मेरा किसी खास श्रेणी तो वर्ग तो नहीं है, मेरा भाव इत्थे किसी कर्म तो, किसी सोच तो, किसी विहार तो है। तो गुरु साहब जी की बाणी के अंदर कर्म आधारित मनुख नूं जिहड़ी है वो वंडिया गया भी जे आ काम करदा है तो साकत है। हो सकता इक्के मनुख के जीवन में साकत पुणा भी काम करता होवे ते गुरमुखताई भी काम करती होवे। जदों मैं उस लैवल तो डिग पैंदा तो मैं साकत हाँ, जदों मैं संभल जाता तो मैं गुरमुखताई का जीवन जी। ये हुण मनुख ने अपने अंदर परखना होंदा कि वो किस वेले किहो जिहा है, वो किस वेले किस तरह की जिंदगी, किस तरह का जीवन, किस तरह का किरदार हंडा रहा, किस तरह की रहनी विच रह रहा। तो इस करके गुरु साहब ने किसी नूं भी परमेश्वर तो खाली जां भिन्न जां वखरा नहीं मानिया। जदों गुरु साहब ये कहते हैं मंदा किसनों आखी है जां तिस बिन कोई ना है, मैं किस नूं मंदा भाव ये किवें कह सकदा कि ये बंदा जिहड़ा नीच है, ये किवें कह सकदा भी ये बंदा काफर है, ये किवें कह सकदा ये बंदा मलेश है, ये किवें कह सकदा भी ये बंदा जिहड़ा है इहदा रुतबा मेरे तो नीच है, नीवा है, घटिया है, इहदा दर्जा छोटा है, इहदी श्रेणी छोटी है। मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जिस मालक वाहिगुरु का तसवर करदा वो मेरे विच भी उन्ना ही है तो इहदे विच भी उन्ना ही। जिसनों मैं समर्पित सिरजनहार वाहिगुरु नूं चेते करदा वो सबनी थाई व्यापक भी है ते पूरक भी है। पूरक का मतलब होंदा है भरपूर होना। फिर आखदे ने जत देखों, देखों का भाव है अनुभव करना। जदों बाणी विच देखा, जब देखा तब गावां, देखों इहदा भाव ये नहीं हुंदा भी इन्हां अखां दे नाल कोई इस तरह का आकार वेख लिया। इहदा भाव है जिस पासे भी मैं महसूस करदा ना। हुण आपां जदों किसी मनुख नाल गल करदे हां ना, देखो बोल चाल दे भाषाई मुहावरे हैं, बोली दे मुहावरे। किसी मनुख नूं जदों आपां ये कहंदे मैं तेरे वर्गे 20 वेखे, तो इसदा मतलब ये थोड़ा हुंदा भी कोई जरूरी तो नहीं ना उहदे वर्गे 20 वेखे होण जां उहदे वर्गा 100 वेख्या होवे जां तेरे वर्गे बड़े वेखे ने। इसदा मतलब हुंदा है भी मैनूं
ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ। ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਤ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ, ਤਤ ਸੋਈ। ਤਤ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਚਿੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਵਿਮੋਹਿਤ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ। ਮਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਏ। ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਜੋ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੂਰਤ, ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ। ਸਾਡੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਹਿੱਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਕਈ ਅੰਗ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ? ਮਾਇਆ ਚਿੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ। ਬਚਿੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਿੱਤਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਇੱਕੇ ਹੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਖਦਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਉਹ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹੋਏਗਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ। ਬਾਕੀ ਨਿਰਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਲ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਿੱਤਰ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ, ਆਸ਼ਚਰਜਮਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਆਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਦਾ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੇਮੋਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਮੋਹੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੇਮੋਹਿਤ, ਮੋਹਿਤ ਤੇ ਬੇਮੋਹਿਤ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਜਾ, ਬੇਮੋਹਿਤ। ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਜਨ। ਬਿਰਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ, ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਰਜਣ ਸੱਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਰਚਨਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਰਥ 'ਚ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਕਤ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਜਲ ਤਰੰਗ ਅਰ ਫੇਨ ਬੁੱਧਬਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ
जो उदाहरण उन्होंने रहाऊ दे बंद विच दिती सी, सूत एक मन शत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई। हुण उसे नूं एक्सप्लेन फिर एक होर उदाहरण नाल करदा। जल तो भाव है पानी, तरंग मतलब लहर, पानी दे उत्ते लहर उठदी है। फेन कहिंदे हन झग। तुसीं कई वार वेखिआ पानी उच्ची जगह तो थल्ले डिगे तो झग जी पानी की पैदा हो जाती। तीजा शब्द वरतਿਆ बुदबुदा, भाव बुलबुले पैदा होंदे ने पानी दे। कहंदे ने जिवें पानी तो लहरां उपजदियां ने पानी की सतह दे उत्ते, पानी के टकराव नाल पानी चों झग पैदा होंदी है, बुलबुले पैदा होंदे ने। जल ते भिन्न ना होईए, सारियां चीज़ां पानी तो वखरियां नहीं होंदियां, ये पानी दे वेग विचों ही उपज जांदियां। हवा दा पानी नाल जिवें ते पानी दा पानी नाल जिवें टकराव बनदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰੰਗਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਝੱਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਉਪਜਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰਿਓਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਵੱਖਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਦੇਖਿਓ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ, ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਏਕ ਅੰਕਾਰ। हजूर महाराज कहते हैं जिवें एक बीज है, वो तो अंकुर फुटिया, पौधा दरख्त बनया, फिर उसनूं फुल पे, बूर पिया, फिर वो फल बनया, फल पक गया, फल नूं कटिया, चीरिया, वढिया गया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सेम ਉਹੋ ਜਿਹਾ बीज मौजूद सी जिस बीज तो उस दरख्त की पैदाइश हुई। हुण ਉਹ बीज ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही दरख्त है ਤੇ दरख्त ने अगे फिर उसे ਉਹੋ ਜਿਹੇ बीज पैदा ਕੀਤੇ ने। ਉਹ एक लगातार चलण वाला प्रोसैस है। इउं कह लो भी बीज ने जिहड़ा सफ़र करना है वो बीज तक का ही करना, वो उहदी एंडिंग है। वो उस करके आपां नूं फल कहने। फल का मतलब ये होंदा जिहड़ी जिथे अखीर होवे, जिथे जाके कहानी उहदी खत्म हो, जिथों तक उन्हें पहुँचना है, जिथों तक उन्हें जाना है। तो सतगुरु महाराज इसे नूं कहंदे ने एक निराकार सत्ता लगातार क्रिया दे विच रहिंदी है। ਉਹਦੇ चों रूप रंग आकार बनावटां सब चीज़ां पैदा होंदियां ने, उपजदियां हन ते बिनसदियां हन। जे ते उपजो नानका लीनता है मैं, बाकी की बचदा। ਉਹੀ जिस नूं सतगुरु कहंदे ने एक ही एक अनेक होए बिस्तर, आन रे आन भरपूर सो। यह परपंच पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन ना होई। परपंच का मतलब इत्थे तमाशा है, जगत रूप तमाशा, संसार रूप परपंच अडंबर। आम तौर पर असीं पखंड नूं अडंबर भी कहने, इन्हें की अडंबर रच रखे। गुरबाणी विच पॉजिटिव अर्थां दे विच भी आया, मेरी सेजड़ी है अडंबर बने। अडंबर का मतलब सजावट। कुछ शब्द ने वो ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਨਾ ਪੱਖੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਲੂਸ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲੂਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਲੂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਲੌ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਭਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਮੇ ਨੇ ਜਾਂ मुगल काल के जोड़े साडे भारत में लिखे गए इतिहास ने, वो बादशाह के जलूस निकलता जिक्र। यदा मतलब ये थोड़ी बादशाह के गल कोई जुत्तियां दा हार पा दिता, वह मूँह काला कर दिता। वह मतलब हुंदा सी बादशाह एक जगह तो दूजी जगह पर जा रहा पूरी आभा दे नाल, बड़ी सजावट दे। जिवें बादशाह नूं जिस तरह लोकां ने वेखना है, जिन्नी सज धज नाल, जिन्नी आभा दे नाल, जिन्नी शानो शौकत नाल ਉਹਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਵਹੀਰ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜਲੂਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੁਣਿਆ, ਜਲੂਸ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਤੇ ਆਭਾ ਦੇ ਨਾਲ गुरु साहिब दी 5 प्यारियां समेत सवारी इधर दी गुजरेगी, संगत होएगी उसनूं, क्योंकि असी गुरु साहब नूं सच्चे पातशाह कहते हैं।
पर शब्द जिहड़ा इन्नी वार ना पक्की तरीके नाल वरतिया गया कि अज जलूस शब्द जे कोई कह देवे ना नगर कीर्तन नूं ते साडी शरधा उहदे गल गलामा पा लैंदी। अडंबर शब्द ही वेख लो, मेरी सेजड़ी है अडंबर बने। हुण आपां किसी नूं कहीए बहुत सोहना अडंबर रचिया तुसां, अगला गल पै जाएगा कि असीं अडंबर रच के बैठे हैं, असीं कोई पखंड करते हैं? नहीं। इत्थे अडंबर दा भाव की है? सजावट, सुहप्पण। मैं अपने हिरदे दी सेज नूं सोहना सजाया होया, सुहप्पण वाली बनाया होया, जिहड़ी है मेरे मालिक तैनूं पसंद आए, तैनूं चंगी लगे। तो इत्थे प्रपंच तो भाव की है? अडंबर, तमाशा, जगत दा तमाशा। ये प्रपंच पार ब्रह्म की लीला, ये उसकी खेड है। इसनूं महाराज ने कहा उहदी खेड है। तो नाराजगी विच कोई नहीं जे खेडदा। नाराजगी तो बंदा भन तोड़ कर। तुसीं बच्चे नूं वेखो, जदों बच्चा नाराज होएगा खिडौने तोड़ देगा, सुट देगा। खेडेगा उदों जदों उहदी मौज होएगी। बच्चा जदों खेडदा है ते प्रसन्नता चों, आनंद चों, अंदर दी खुशी चों, अंदर दे चाह चों अपने मनोरंजन हित खेडदा है। जदों उहदा अंदर दा चाह, अंदर दी प्रसन्नता, अंदर दी खुशी, अंदर दा खेड़ा उहनूं सट वज जाए, उसे खिडौने नूं जिहदे नाल ओह घंटियां बद्धी खेडदा है, चुक के जमीन ते मार। जदों परमेश्वर नूं इह जगत नूं परमेश्वर दी खेड कहा गया तो सानू जिहड़ा जीवन दिता है कोई इस तरह थोड़ी है भी असीं कोई वर्जत फल खा लिया तो धक्के मार के उन्हें संसार च सुटिया तो उन्हें जगत की रचना कर दी। ये क्रोध चों पैदा हुई खेड नहीं। सतगुरु ने आख्या ये उहदी मौज चों, उहदी बख्शिश चों पैदा हुई, उहदी प्रसन्नता विचों जगत कुछ उपजे। तो हजूर ने इत्थे फरमाया विचरत आन ना हो। विचर का मतलब है विचारदे। जे इस गल नूं होर विचारिया जाए गहन तरीके नाल, आन ना हो। आन का मतलब है वखरी। ये जगत रूप तमाशा, ये जगत की खेड उहदे तो बिल्कुल वखरी है। वो आप ही खेड रहा है, मानो वो आप ही इस खेड विच इनवॉल्व है, शामिल है। फिर फरमाउंदे हन मिथ्या भरम और सुपन मनोरथ सत पदार्थ जाने। मिथ्या का मतलब होता है मिथक, नाशवंत, जिस चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं। हुण सतगुरु एक पासे तो कहते हैं जगत रचना उहदी है, वो खेड रहा, वो आप ही इहदा रूप है, तो ये उहदा ही रूप है। ओत पोत इस नूं कहंदे ने, जिथे वखरेवा कोई ना। फिर मिथ्या क्यों किया? इत्थे मिथ्या जिहड़ा है उस रूप नूं कह जिसनूं असीं सही ते परमानेंटली मान लिया भी इस तरह ही रहेगा। हुण ये तो सच है भी आपां सारे इत्थे बैठे हैं, पर यह सच नहीं भी आपां पहलां भी इस तरह ही बैठे सी ते बैठे रहांगे। यानी कि परमानेंटली काम नहीं चलेगा, ये बदलाव आउंदा रहेगा, तब्दीली वापरदी रहेगी। जो जिस तरह का रूप है, रंग है, आकार है, बनावट है, वो सारा कुछ चेंज होता रहेगा। इस करके वो मिथ्या है। वो कल सी अज नहीं है, जां कल वर्गा अज नहीं है। अज है कल नहीं होवेगा, जां अज वर्गा कल नहीं होवेगा। वो तब्दीली विच है लगातार। असीं अपनी 10 साल पुरानी फोटो, पिछले साल की फोटो ही वेख लीए, बड़ा कोई बदल जाता। कई बार तो सानू अपनी तस्वीर पुरानी चंगी नहीं लगती। मैं किहो जिहा लगदा, किसी नूं विखाउंदे नहीं। असीं अज तो 20 साल पुरानियां जिहड़ियां पुराने कैमरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ फोटोआं ने, साडा उत्थे पहरावा वेखो, साडे उत्थे नैण नक्श वेखो, बंदे नूं लगदा है इह कोई खास परसनैलिटी वाली गल नहीं रही। बंदा अपने अज नूं जो अज मैं दिस रहा उहनूं रिप्रजेंट कर। तब्दीली वेखो तुसीं, असीं ते उही हां, पर तब्दील कर दिता सानूं कुदरत दे असूलां ने, नियमां ने, कानूनां ने। पर असी जो अज आए असी कल नहीं रवांगे, तो इस तरह असी फिर हौली हौली असी भी नहीं रवांगे। जो साडा स्ट्रक्चर है, जो साडा जीवन है, पर सानू सिरजण वाली सत्ता मौजूद रहेगी। ये जिहड़ा मटीरियल है, ये जितों जेते उपजो नानका लीन ताहे मैं, उहदे विच वलीन, उहदे विच रल जाएगा। नवे आकार उपजते रहणगे, नवीआं चीज़ां उपजदियां रहणगियां।
इस करके मिथ्या आख्या। मिथ्या भरम, भरम का मतलब होता है भुलेखा। वो भरम जो सच के उत्ते आधारित ना होवे जिहड़ी गल, उसनूं कहा जाता है भरम, भुलेखा। जिवें हनेरे च रस्सी नूं सप समझना भरम है, भुलेखा है। गलत किस्म के भुलेखे अते सुपन मनोरथ। सुपन का मतलब होता है जिवें सुत्या होया ख्यालों के जोड़ चोड़ तो साडे अचेत मन विच कहानी बन जाती, एक दृश्य बन जाता। मनोरथ मन दीआं उक्तियां, मन के ख्यालों करके। इसे तरह असीं सत पदार्थ, पदार्थ नूं सच जाणदे, पदार्थ नूं, स्ट्रक्चर नूं, जो दिस रहा है उसनूं असीं मिथ लिया भी इन्हें तो इवें रहना, इन्हें किहड़ा किते जाना। ते असीं भी पदार्थ ही हाँ, एक तरह के कुदरत दे विच असीं भी पदार्थ हाँ। जन्म पदार्थ शब्द नूं सतगुरु ने इसे करके बाणी च वरतिया भी असीं भी उन्हां पदार्थां वर्गे, उन्हां ते जे समा फर्क पा रहा तो पा साडे ते भी रहा। सत पदार्थ जानिया, पदार्थ नूं सदीव काल कायम रहन वाला करके मन लिया, इसलिए उहदे वास्ते लड़दा ते मरदा है, इस वास्ते उहदे लई धोखे ते जालसाजियां करदा है। इस करके अपनी ते दूजियां दी जिहड़ी बड़ी लिमिटेड जी जिंदगी है उहनूं नरक समान बना धरिया भी इन्हें सदा रहना ते मैं इसनूं माणदे रहना, ये भुलेखा नहीं निकलदा। फिर आखदे हन सुकृत मनसा गोरे उपदेशी। सुकृत का मतलब होता है चंगी करनी, चंगे आचरण वाली, चंगे विहार ते चंगे कर्मां वाली। मनसा का मतलब है मन दे ख्यालात, मन दे विचार, मन विच पैदा होने वाला भाव कह लो। मन च जिहड़ा भाव पैदा हो उन्होंने आपां विचार ही कह दें, मन विचारां दा संग्रह ही है ना। गुर उपदेश, गुरु ने जिहड़ा उपदेश दिता वो की काम करदा है? चंगे आचरण वाली भावना साडे मन विच पैदा करदा। गुरु दे उपदेश ने प्रोसैस कित्थों शुरू करना है तो प्रोडक्शन की कर रही है। कैसा खूबसूरत वाक है। गुरु दे उपदेश राही साडे मन का भाव चंगे आचरण वाला बनना है, चंगी रहनी वाला बनना है, उत्तम जीवन घड़िया जाना है। फिर आखदे ने जागत ही मन मानिया। जदों गुरु उपदेश नाल मनुख आत्मक तौर पर सुचेत जां चेतन जिन्हों कहा गया जागण की अवस्था, मोह हंकार तो उपर उठ जाना, इस नींद का टुट जाना है। मन मानिया, फिर मन पतीज गया किहड़ी गल विच? विचरत आन ना होई। इस गल विच सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, इस गल विच मन मानिया, पतीज गया, ये ख्याल ऑब्जर्व कर लिया। तो अगे जाके फरमाउंदे ने कहत नामदेव हर की रचना। देखो हृदय विचारी, नामदेव जी आखदे ने ये सारी हरी दी रचना ही है, सारा ओदी सिरजना है। हिरदे च विचार के वेख लो, तुसी इस गल ते विचार करो, अपने मन नाल इस ख्याल दी होर गहन गंभीरता दे नाल अपने आप दे उत्ते चर्चा करो, डूंघाई नाल खोज पड़ताल करके वेख लो। घट घट अंतर सर्ब निरंतर, घट हर हिरदे, हर शरीर विच, हर आकार विच, सर्ब सारियां विच, निरंतर बिना विथ तो। जिवें पहली पंक्ति शब्द वरतिया सी ना व्यापक पूरक, इत्थे भी उस तरह ही निरअंतर, विथ अंतर तो बिना, कि सबना दे विच एक समान जो है, केवल एक मुरारी, इको परमेश्वर ही केवल आप ही आप मौजूद है, व्यापक है। गरीब नवाज बख्शिश करन। सतगुरां दा पावन उपदेश साडे सबना दे मन हिरदियां विच वसे। पातशाह होईयां भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शण। अदब सहित गुरु फतेह नाल सांझ बनाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।